the Government of India Act 1919, also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, also known as the Montford Reforms. तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है that 1917 में you remember August Declaration हुआ था, किसने किया था? Secretary of State for India, that is Lord Montagu. क्या declaration था? From the British House of Commons, he had proclaimed that the ultimate goal of the ongoing scheme of constitutional reforms is to prepare Indians for self-government and to give dominion status to India. Right? On the basis of that declaration, एक report publish करी गई, prepared by Montagu and Chelmsford. They were the Secretary of State and Governor General of India. This report consisted of a draft of constitutional reforms, और इसी draft को जब finalize किया गया, that was known as the Montford Reforms or the Government of India Act 1919. Clear है इतना? अच्छा, आगे देखिए क्या हुआ. With these reforms, the British were hoping to pacify the nationalists. However, it had the opposite effect and intensified the national movement. तो अंग्रेज एक्सपेक्ट कर रहे थे that through these constitutional reforms, nationalist activity में थोड़ी ढील आएगी, they would slow down. लेकिन इसका opposite effect हुआ. क्यों? Because the provisions of this act were detrimental to the national interest. Right? So their expectations were belied. अच्छा, what was the most controversial provision of this act? Does anyone know? It was the principle of डायरकी. अभी हम आगे देखेंगे कि क्या है डायरकी. ठीक है, तो क्या क्या प्रोविजंस हैं एक्ट के, उनको देख लेते हैं. सबसे पहला प्रोविजन है दैट द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन सा लेजिस्लेचर होता है? कोई ऐसा लेजिस्लेचर जिसके दो हाउसेज हों. फॉर एग्जाम्पल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. व्हाट आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? द लोकसभा एंड द राज्यसभा. upper house and the lower house and the upper house. Lower house is usually the house of the people and upper house is usually the house of states, the council of states. Right? इसी तरह से 1919 का जो एक्ट था that also provided for a bicameral legislature. What were to be the two houses? The Central Legislative Assembly and the Council of States. Central Legislative Assembly was to be the lower house and Council of States was to be the upper house. क्लियर है? अच्छा, मेंबरशिप कैसी थी? द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस वाज टू हैव अ टोटल ऑफ 145 मेंबर्स, जिसमें कि 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते और 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते. काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस वाज टू हैव 60 मेंबर्स, out of which 36 were to be elected and 24 to be nominated by the government. All right. टेन्योर क्या क्या था? प्रेजेंटली लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, जल्दी से बताओ. इट इज 5 years. राइट? अच्छा, उस समय जो लोअर हाउस था उसका टेन्योर था 3 years. दैट मीन्स इट वुड बी डिसॉल्व्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years. प्रेजेंटली राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, जल्दी से बताओ. यस, इट डज नॉट हैव एनी टेन्योर. इट इज अ परमानेंट बॉडी. वेरी गुड. लेकिन उस समय इट वॉज नॉट अ कंटिन्यूइंग हाउस. इट हैड अ लिमिटेड टेन्योर ऑफ 5 years. ठीक है, तो इस तरह का तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया. अच्छा, सेकेंडली ये बताइए कि राज्यसभा में अगर अलग अलग स्टेट्स को सीट एलोकेट करनी होती है तो किस बेसिस पे करी जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. राइट? लेकिन उस समय पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल नहीं इंट्रोड्यूस करा गया था. Seats were to be allocated to the states in the central legislature, that is the Council of States, on the basis of importance and not population. Clear है? For example, पंजाब was important militarily, तो पंजाब को ज्यादा सीट्स मिल गई. बॉम्बे was important financially, तो बॉम्बे को ज्यादा सीट्स मिल गई. बट मोर पॉपुलर स्टेट्स सच एज यूपी एंड बंगाल, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, उनको कम सीट्स मिली काउंसिल ऑफ स्टेट्स में. क्लियर है इतना? आगे बढ़े. ऑल राइट, चलिए अगला प्रोविजन है दैट द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 lists. राइट? कौन कौन सी 2 lists? सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट. तो करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट्स हैं? 3 lists हैं. द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. उस समय 2 lists होती थी, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट.
आगे क्या हुआ? दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। सो प्रोविंशियल लिस्ट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू द रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, राइट। अब ये जो डिवीजन हुआ है, इट इज नॉट इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर, इट इज इन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। तो यानी कि ये सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कौन एडमिनिस्टर करेगा, अब ये डिटरमिन करेगा डायरकी का प्रिंसिपल। तो दो लिस्ट बनाई गई, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। Reserved subjects were to be administered by the governor of the province on the advice of his executive councillors. You remember कि हर province में एक एक governor होता था. He was the head of the state at the provincial level. He was also the head of government at the provincial level. Till now, he was being guided exclusively by the opinions of his executive councillors. लेकिन पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किस चीज पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द बेड रॉक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे एब्सेंट था। तो अभी क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट जो है, गवर्नर इज गोइंग टू कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर देम ऑन द एडवाइस ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, द गवर्नर वाज टू एडमिनिस्टर देम ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु वर इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो दो बॉडीज होंगी जो कि गवर्नर को एडवाइस करेंगी। एक तो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होंगे हु वर ऑल गवर्नमेंट अपॉइंटीज, एंड दूसरे कौन होंगे? इलेक्टेड मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु वर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अच्छा, what was the nature of the division? That all important subjects were kept under the reserved list, that is firmly in the control of the government, और जो less important subjects थे उनको transferred list में रखा गया था to be controlled by the elected ministers. For example, reserved list के कुछ subjects mentioned हैं यहाँ पे, such as finance, police, irrigation and power. ट्रांसफर्ड लिस्ट में किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। डू यू थिंक कि बिना फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल हुए एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ या इंडस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सो फाइनेंस इज द मदर ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज। जब तक इस पे इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो तब तक कोई भी सोशल वर्क या एक्सपेंडिचर लेआउट नहीं किया जा सकता है। Do you think that without having control over irrigation, agriculture could flourish? No, it could not. Power के बिना industry चल सकती है? नहीं चल सकती है। So this division was irrational and unscientific. जो transferred subjects थे, that they were in the hands of Indians. जो reserved subjects थे, they were in the control, under the control of the British. So this became a huge source of friction and conflict within these councils and legislatures. क्लियर? तो आप ये समझ लीजिए, अगर ताला इधर है तो चाबी इधर रखी गई है, अगर चना इधर है तो चबाने के लिए दांत इधर दिए गए हैं। समझ में आया डायरकी क्या है? इन विच स्फीयर वाज इट इम्प्लीमेंटेड, इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर? बताइए जल्दी से। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। कैन वी मूव अहेड? गुड। अच्छा, then a partially responsible government was introduced at the provincial level. लेकिन responsible government का जो concept है central level से completely missing था। तो हमने क्या देखा कि प्रोविंशियल लेवल पे कम से कम इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, ऑल्दो बहुत पावरफुल नहीं है, ऑल्दो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कंट्रोल नहीं है, बट सम सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे आर कंट्रोलिंग एंड एडवाइजिंग द गवर्नर। लेकिन ये अरेंजमेंट केवल प्रोविंसेस पे ही है। एट द सेंटर अभी भी गवर्नर जनरल और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है। पावर इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद इंडियंस, therefore responsible government was completely absent at the central level. इसमें और भी कमियां थी, that elected governments could be removed by governors at the provincial level. तो
collective responsibility, which is the bedrock of democratic politics, was missing over here. It had further enhanced the scheme of constitutional autocracy. क्यों? क्योंकि गवर्नर्स जब भी चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर सकता है, सॉरी टॉपल कर सकता है, एंड इलेक्टेड हाउसेस को डिसॉल्व कर सकता था, तो उसके पास ये पावर भी थी. देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस तो करी गई थी, बट इट वाज एन आई वॉश, ये केवल सरफेस लेयर पे ही प्रेजेंट था, इट वाज नॉट डीप. अच्छा, नेक्स्ट, legislators in the provinces needed the government's permission to enact legislation. तो provinces में अगर कोई भी नया लॉ इंट्रोड्यूस करना होता था, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना होता था, तो सबसे पहले गवर्नर को उसकी एक कॉपी भेजी जाती थी. जब गवर्नर के दस्तखत उस पर हो जाएंगे तभी वो परमिशन मिलेगी उसको कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर. क्लियर है? अच्छा, गवर्नर के पास वीटो पावर्स भी थी. अच्छा, बजट को के कुछ पोर्शन को वोटेबल बनाया गया था, बट अबाउट 75% ऑफ द बजट, उसके 75% आइटम्स अभी भी नॉन वोटेबल थे. The legislators were given the right to vote on certain parts of the budget. They could make pass cuts on the budget, लेकिन गवर्नर के पास पावर होती थी इन कट्स को रिस्टोर कर देने की. Therefore, financial control of the legislature over the government was also very loose. Firm grasp नहीं था. Right? Therefore, effective and responsible government was not introduced over here. अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या प्रोविजन है. गवर्नर जनरल ऑल्सो कुड रिस्टोर कट्स, सर्टिफाई बिल्स एंड इशू ऑर्डिनेंसेस. कट्स को रिस्टोर करना ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ. what does it mean that the governor general had the power to certify bills? अगर कोई ऐसा बिल है जो कि लेजिस्लेचर ने डिफीट कर दिया है, वहां लेजिस्लेचर में पास नहीं किया है, तो गवर्नर could reanimate that bill and bring it into effect. वो उसको सर्टिफाई कर देता है एंड it would bypass the legislative process. तो एक गवर्नर जनरल भी यूनिलैटरली लेजिस्लेट कर सकता था. That is what it means. He could also issue ordinances. अच्छा, next, legislators could ask questions and supplementaries, pass adjournment motions and vote on part of the budget at the center. So this we have already discussed. For the first time, the element of direct elections was introduced in India through this act, through the Government of India Act 1919. ये भूलिएगा मत कि डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किए गए, 1919 में. लेकिन यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं. क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज वाज एब्सेंट, फ्रैंचाइज वाज वेरी लिमिटेड. राइट, तो इंडिया की पॉपुलेशन उस समय 260 मिलियन थी, अबाउट 26 करोड़, and through this act about 1.5 million people became eligible to vote, so less than 10% of the population. Right, पहली बार women को भी right to vote 1919 में ही मिला था. अच्छा, further the controversial principle of separate electorates उसको और ज़्यादा expand कर दिया गया था. 1909 में separate electorates किस community को दिया गया था? जल्दी से बताइए. 1909 Morley Minto reforms say who got the separate electorates? Yes, so Muslims were given the separate electorates. But now it was also given to Sikhs, Anglo-Indians and Indian Christians. So the controversial provision of separate electorates was expanded even further. Acha, apart from this, 3 out of 8 members of the Governor General's Council, Executive Council, were to be Indians. Do you remember कि 1909 एक्ट में एक प्रोविजन था that one Indian in the Governor General's Executive Council was to be there. Who was the first Indian to become a part of Governor General's Executive Council? पिछली बार नाम बताया था, that was SP सिन्हा. अब इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था. Now 3 out of 8 members in the Governor General's Executive Council were to be Indians. All right. अच्छा, इंडियंस की एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसका जो इंडिया ऑफिस है उसके एक्सपेंसेस ब्रिटिश ट्रेजरी से निकाले जाएं. इंडियन टैक्स पेयर शुड नॉट बी मेड टू बेयर दिस बर्डन. दैट डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड थ्रू this Montagu-Chelmsford reforms of 1919. So Secretary of State for India and India Office expenses were to be borne by the British Exchequer now. And finally, एक इंडिया को इंग्लैंड में रिप्रेजेंट करने के लिए
the British government of India would now establish a high commission at London. So this was the beginning of India's foreign relations independently, not as part of the British Empire. So एक Indian High Commissioner was to be sent at London, was to be stationed at London, right? So these are the important provisions of the Government of India Act 1919. अब देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या पॉजिटिव चीजें थी, क्या क्या नेगेटिव चीजें थी. अच्छा, तो इसका इवैल्यूएशन देख लेते हैं. First of all, the act failed to fulfill nationalist aspirations. What were the nationalists demanding? They were demanding Swaraj, responsible self-government. लेकिन गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू क्या इंट्रोड्यूस किया? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया. देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट और ऑटोनॉमी. तो रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट या ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो था इस एक्ट से कंप्लीटली मिसिंग था. Although the legislatures had been expanded and the proportion of elected members were now in majority, but still there were a large number of nominated members, and this was against the idea of popular sovereignty. Acha. The provisions pertaining to responsible government were completely empty. क्यों? क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास वीटो, सर्टिफिकेशन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, रेस्टोरेटिव पावर्स भी थी, राइट? सो द legislature did not have any legislative control over the government. Then collective responsibility, which is the bedrock of parliamentary democracy, was only partially introduced at the provincial level. It was completely missing from the center. ये हम already देख चुके हैं. Further, franchise was also limited. Only 15 lakh Indians, 1.5 lakh Indians, 1.5 million Indians out of 26 crore Indians were allowed to vote. और ये franchise किसके ऊपर बेस्ड थी? On the basis of educational and economic qualifications, right? So only the highly educated and the very rich got the right to vote. The rank and file of the Indian people did not receive the right to vote. The controversial principle of communal electorate was also expanded to 3 नई communities को communal electorate दिया गया, that is Sikhs, Anglo-Indians and Indian Christians. And finally, the unscientific and irrational principle of diarchy was introduced at the provincial level. Now, this was bound to create friction and failure. All the important subjects were under the reserve list, which was under the control of the government. और मिनिस्टर्स के पास कोई इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर ऑफिशियल्स नहीं था. सो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को ये एक्ट फुलफिल करने में बिल्कुल फेल हो गया. अब ये फेल हुआ तो क्या हुआ होगा? कोई रिस्पॉन्स आया होगा. द रिस्पॉन्स केम इन द फॉर्म ऑफ मैसिव प्रोटेस्ट्स, राइट? सो ये जो 4 फैक्टर्स हमने देखे हैं, दैट इज द रावलट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द हंटर कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and the Khilafat issue, this led to the rise of general discontent among Indians.